A monumental masterpiece, the Qutub Minar. The Qutub Minar is a towering symbol of India's medieval history and stands majestically in Delhi. This magnificent minaret, built during the Delhi Sultanate period, is a testament to the architectural brilliance of the time. The construction began in 1199 under the reign of Qutbuddin Aibak, the founder of Mamluk dynasty. Aibak's successor Iltutmish continued the construction and added 3 more stories. Later, Firoz Shah Tughlaq repaired and restored the minaret after the damage caused by lightning strikes. The minaret is primarily constructed of red stone, which gives it a distinctive hue, intricate carvings. The surface of minaret is adorned with intricate carvings and inscriptions, showcasing the skill of artisans. The minaret comprises of 5 stories, each with a distinct architectural style. Projecting balconies encircle the minaret, offering breathtaking views of the surrounding landscape. The Qutub Minar is a part of the Qutub complex, which includes several other historical monuments. One of the earliest mosques in India, built by Qutbuddin Aibak, is Quwwatul Islam Mosque. A mysterious iron pillar that has withstood the test of time without rusting is the iron pillar. The tomb of Iltutmish, a fine example of early Islamic architecture in India. The Qutub Minar and its associated monuments were declared a UNESCO World Heritage Site in 1993, recognizing their outstanding universal value. The Qutub Minar continues to captivate visitors with its grandeur and historical significance. It stands as a reminder of India's rich past and the architectural genius of the builders. Now try to have an open interview about the Qutub Minar. We'll try to explore the thoughts, experiences and knowledge about the iconic historical monument. So, let's begin. Hi, I am Anjali Om with my person Vikruti Paul, and we are from SCRTKG, and I have a person over here, a lady, a beautiful lady in front of me. She has visited this monument, and I'll try to assess how she has been feeling about it and what's the big deal about it. नमस्कार मैम, आप अपना नाम बताएंगे हमें? प्रिया गुप्ता से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस प्लेस से प्रभावित हुई हैं। मैम, क्या आपका पहला विजिट है यहाँ पे? This is my first time. एंड आपको कैसे क्यों ऐसा लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? काफ़ी सुना है, मतलब पहले से बहुत इसके बारे में सुना है, तो लगा कि एक बार विजिट भी करना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ है क्या, कैसा है, किस चीज़ का है। तो क्या लगता है आपको मैम, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन हब से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ कि वो बुक से जब हम पढ़ते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो वो कुछ जो आइडियाज़ है वो क्लियर नहीं होते। तो हाउ डू यू फील कि अगर बच्चों को यहाँ लाया जाए तो क्या इसका कोई एजुकेशन वैल्यू है कि वो बुक से डायरेक्टली यहाँ आ जाएं और उनको एक आइडिया पहले से ही दिया जाए? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो पहले बुक से थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता ना तो कुतुब मीनार क्या है। वो आएंगे डायरेक्ट, उनको पता चलेगा अच्छा ठीक है कोई मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। बुक से थोड़ा पता चलता है कि हाँ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कोई कुतुबुद्दीन थे, उन्होंने इसको बनाया था तो कैसे बनाया। फिर हमें यहाँ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखने मिलती है, जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी बिल्डिंग्स पर ना यहाँ कुछ ब्रोक किए राइट है ना, तो कुछ मूर्तियों को तोड़ा गया है, कुछ ऐसा इंडिकेट होता है कि जैसे मेरी जगह सम हिंदू का मंदिर टाइप होता है ना, वैसे कुछ मुझे कुछ लग रहा था। So there are the historical evidence. Thank you so much, ma'am, for joining with us.
This is Anjali Om again connecting you to some other person. Thank you. हमारे साथ जुड़ी हैं शीतल कौल। शीतल कौल जी हमें बताएंगी यहाँ के बारे में, क्योंकि हमने सुना है कि शीतल कौल जी का कहना है कि ये रेगुलर विजिट यहाँ करती हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। शीतल कौल जी, आप क्या बताना चाहेंगे, चूँकि आप कहते हैं कि आप रेगुलर यहाँ विजिट करते हैं, कैसा लगता है आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं पूछूंगी, मैं बताना चाहूँगी कि शीतल कौल जी खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं और इनका पर्व्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। मैम प्लीज़ बताएंगे आपकी, हाउ डू यू सी दिस एज एन एजुकेशनल a sort of a device that can teach our students? देखिए मैम, ऐसा है क्योंकि हमारे जो बुक्स में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली हम इनको यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, विजिट्स करते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स लेके आते हैं हम बच्चों को, सो दैट उनको भी नॉलेज रहे कि जो हमें बुक्स में पढ़ाया जा रहा है वो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो वो चीज़ें हम बच्चों को नॉर्मल बेसिस पे विजिट्स पे लेके ही आते हैं। वैसे भी मैं नॉर्मल डेली यहाँ पे वॉक करने आती हूँ, नॉर्मली जो भी है यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत सब कुछ अच्छा है, एजुकेशनल वाइज भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमें यहाँ पे मिलती है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा मैम, एक और मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ डेली मर्रा पे मुझे लगता है बहुत सारे विजिटर्स विजिट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक, जैसे इसको हमने यूनेस्को ने इसको एक दर्जा भी दिया है, इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस घोषित किया है, डू यू थिंक दैट वी हैव बीन एबल टू प्रिजर्व द प्लेस? हम इसका संरक्षण कर पाए हैं? बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाहर के लोगों के लिए भी, जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए भी बहुत एक्सपीरियंस रखता है कि क्या हुआ है यहाँ पे, कैसे हुआ, किस बेसिस पे बना हुआ है, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ को प्रिजर्व रखेंगे, डे बाई डे बेसिस पे कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डेली बेसिस पे होंगी, या जो भी इनके फंड्स वगैरह जैसे भी आएंगे उस बेसिस पे रहेंगे, तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे और भी विजिटर्स आएंगे। वैसे भी यहाँ पे डेली बेसिस पे मुझे लगता है मिलियंस में लोग आते हैं, बहुत सारा क्राउड रहता है यहाँ पे, तो उससे और भी ज़्यादा होगा, हमारा सब कुछ अच्छा ही रहेगा यहाँ पे फिर। Thank you so much, ma'am, for joining us. This is Anjali Om from SCERT KD. Thank you. So now we have come a long way और हमारे साथ दो साथी और भी जुड़ चुके हैं, तो जानना चाहेंगे इनसे। मैम, आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विजया राजे लक्ष्मी है। विजया जी हैं और हमारे साथ प्रेमलता यादव। प्रेमलता यादव जी जुड़ी हुई हैं। मैम, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। और आप? मैं भी मुंबई। So both of them are from Mumbai. So let's try to explore something more. मैम, क्या लग रहा है आपको, क्यों यहाँ आए आप? मुंबई से इतना लंबा रास्ता, इतना डिफिकल्ट होता है, एंड देन कमिंग टू दिस प्लेस और विजिटिंग दिस प्लेस, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दिल्ली घूमने ही आए थे हम। राइट। तो दिल्ली अगर आप घूमने आए तो दिल्ली में और भी सारी जगह हैं, आप यहाँ क्यों आपने सोचा कि यहाँ पे भी आया जाए? केवल इसलिए कि लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार जाना चाहिए, या कुछ और भी रीज़न थे, आप खुद भी कुछ जानना चाहते थे? नहीं, हम भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, थोड़ा जो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो क्या लगा आपको मैम यहाँ आके, किस तरह से आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोरेशन, और आपकी जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे किन चीज़ों को बारीकी से अंडरस्टैंड किया, या क्या ऐसी नई चीज़ आपको लगी? नई चीज़ यहाँ तो वैसे मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ, ओके, मगर नई चीज़ ये लगती है कि मतलब अच्छा लगता है, और यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड उनको नॉलेज, हमारे बच्चे छोटे हैं उनके लिए जानकारी। देखिए मैम, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो अपने बच्चों की बात की है, तो मैं यहाँ से जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए ऐसे प्लेसेस पे लाना किस हद तक अच्छा रहेगा? बहुत हद तक उनके नॉलेज में, जैसे बेसिक से शुरू हो जाता है, केजी से ही, जैसे हमारे मोनूमेंट्स कितने हैं, कहाँ है, क्या है, तो उसमें से ये एक पार्ट है। जैसे कि ताजमहल ये है, तो मेरी बेटी ने ज़िद किया कि मुझे कुतुब मीनार देखना है, तो मैं कुतुब मीनार उसे ले आई हूँ दिखाने के लिए। बाद में हम अभी वहाँ भी जाएंगे, लोटस टेम्पल वगैरह भी जाएंगे, तो वो उनके पढ़ाई से भी रिलेटेड है, उनके लिए हेल्पफुल, और हम भी घूम रहे हैं। क्या लगता है मैम, एक बार बच्चों को यहाँ लाया जाए और उनको किताब से कुतुब मीनार पढ़ाया जाए और यहाँ लाकर दिखाया जाए, तो दोनों में कुछ फ़र्क रहेगा? तो वो बहुत रिकॉल कर सकते हैं ना, यहाँ देख लेंगे तो फिर वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो भी उनको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा है सामने से। Thank you so much for joining us. So you saw that people over here are talking about NEP 2020 by hooking up the target points with our syllabus and competency-based education. This is Anjali Om with two of my fellows from JKCRT. Thank you. Thank you. Thank you.